Today we will start with प्रॉब्लम नंबर 13। लेजर जो टॉपिक है, लेजर का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके जर्नल एंट्रीज आज कंप्लीट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 1st, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 and goods ₹5,000. Sum number 13, first transaction January 1st, started business with cash ₹10,000 and goods ₹5,000. इसका जर्नल एंट्री डेट 1, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का जो अमाउंट है, कैश अकाउंट का अमाउंट है 10,000, गुड्स अकाउंट का अमाउंट है 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 15,000। इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग started business with cash and goods। इसका रूल का एप्लीकेशन, कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट। इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर डेबिट। Goods are also coming in the business, तो goods account is also debit। and capital account को personal account का रूल अप्लाई किया, credit the giver। तो businessman जो है, businessman is the giver, therefore capital account is given credit। इसको personal account का रूल अप्लाई किया, credit the giver। cash and goods they are coming in the business, therefore debit। and capital is the personal account of the businessman, businessman is giver, तो credit the giver। second transaction January 5, cash sales 3,000 and cash purchases 2,500। second transaction है cash sales 3,000 and cash purchases 2,500। इसके आपको दो एंट्रीज करना है। कैश सेल्स इसका पहले एंट्री करना है, कैश परचेसेस इसका सेकंड एंट्री करना है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन जो है, सेकंड ट्रांजैक्शन जनवरी 5, इसके दो सेपरेट एंट्रीज करना है। तो जनवरी 5 जर्नल एंट्री फॉर द कैश सेल्स, डेट 5, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, अमाउंट 3,000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन है बीइंग कैश सेल्स, नरेशन फॉर दिस बीइंग कैश सेल्स, कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट they both are real account, cash account and goods account they both are real account। cash is coming in, cash is coming in, therefore debit, and goods are going out, therefore goods account is given credit। cash comes in debit, goods goes out credit। second part of the same transaction cash purchases, तो जर्नल एंट्री फॉर द कैश परचेसेस, डेट 5,
account debit to cash account. ट्रांजैक्शन है कैश परचेसेस 2500. तो जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट. गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट. यहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. गुड्स आर कमिंग इन therefore debit, and cash is going out therefore credit. Goods comes in तो debit what comes in and cash goes out, credit what goes out. इसका नरेशन जो है, नरेशन लिखना being cash purchases. Third transaction है January 7. Sold goods to Hema rupees 2000 at 10% trade discount. Transaction है sold goods to Hema rupees 2000 at 10% trade discount. तो journal entry for this Hema account debit to goods account. Sold goods to Hema rupees 2000 at 10% trade discount. तो journal entry Hema account debit to goods. Hema account है personal account. इसको रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर. तो here Hema she is receiver therefore debit. Goods account है real account. Goods are going out तो credit what goes out. ये रूल हमने goods को अप्लाई किया. Hema she is receiver, debit the receiver. Goods are going out, credit what goes out. Calculation of this. Sold goods to Hema 2000, 10% trade discount. तो 2000 पे 10%, 200 rupees trade discount. This trade discount you have to subtract from 2000. Trade discount this you have to subtract from 2000. So journal entry will be recorded with 1800. Journal entry आपको 1800 रुपीस से करना है. Hema account debit to goods account entry will be recorded with 1800. इसका नरेशन लिखना है. एंट्री का नरेशन being sold goods to Hema at 10% trade discount on credit. नरेशन जो है being sold goods to Hema at 10% trade discount on credit. On credit it means without cash. Fourth transaction Hema return goods rupees 100 gross. Fourth transaction Hema return goods rupees 100 gross. यहाँ पे gross को अंडरलाइन करना है. Underline the word gross. तो journal entry for this transaction goods account debit to Hema account. Journal entry है goods account debit to Hema account. Goods account ये real account है. Goods account this is real account. इसको real account का रूल अप्लाई किया. Debit what comes in. तो goods are coming in therefore debit. Hema personal account है. तो Hema को रूल अप्लाई किया credit the giver. Hema personal account rule applied credit the giver. Goods comes in therefore debit and Hema is the giver therefore credit. Now the calculation of this transaction is given
हेमा रिटर्न गुड्स ऑफ ₹100 ग्रॉस. तो ग्रॉस it means you have to calculate this 10% trade discount on this 100. On this 100 rupees you have to calculate this 10% trade discount. तो 100 rupees पे 10% discount. तो 10 rupees will be the trade discount. This trade discount you have to subtract from 100. So journal entry will be recorded with 90 rupees. Transaction is given. हेमा रिटर्न गुड्स ऑफ 100 ग्रॉस. तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब दिस 10% ट्रेड डिस्काउंट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन दिस 100. तो 100 रुपीस पे 10%, 10 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट, 100 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 90 रुपीस. एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेमा, अमाउंट 90 रुपीस. इसका नरेशन ऑफ दिस being goods returned by Hema gross. Being goods returned by Hema gross. Fifth transaction है received from Hema ₹75. Received from Hema ₹75. तो journal entry for received from Hema. Cash account debit to Hema account. Received from Hema ₹75. तो journal entry cash account debit to Hema account. Cash account है real account है. Cash account is real account. इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट. हेमा को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. हेमा शी इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर. कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. हेमा शी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. नरेशन ऑफ दिस एंट्री का नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमा. Being cash received from Hema. Next transaction है January 18. Paid carriage on behalf of Hema ₹25. Underline करना है on behalf of Hema. Paid carriage on behalf of Hema ₹25. तो journal entry for paid carriage on behalf of Hema. कैरेज जो है, कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस. कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस. तो जनवरी 18 का जर्नल एंट्री फॉर पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ हेमा. अंडरलाइन द वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ हेमा. तो एंट्री विल बी हेमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री हेमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 25. यहां पे हेमा अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. हेमा अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. डेबिट द डेटर. ये जो रूल है, ये रूल हमने यहां पे हेमा को अप्लाई किया है. पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ हेमा ₹25. कैरेज जो है, कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस. तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस 25 रुपीस वी हैव पेड. ट्रांसपोर्ट चार्जेस 25 रुपीस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेमा. तो ये जो 25 रुपीस जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ये 25 रुपीस हमें हेमा से वापस लेना है. ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 25 रुपीस
जो हमने पे किए ये 25 रुपीस क्या करना है, हमें हेमा से वापस लेना है। तो हेमा जो है, हेमा ये पर्सनल अकाउंट है, इसको रूल अप्लाई किया, डेबिट द डेटर। डेटर का डेफिनेशन, डेटर जो वर्ड है, डेटर का डेफिनेशन, डेटर इज ए पर्सन, डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money. Debtor is a person from whom we have to receive the money. ट्रांजैक्शन है पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ हेमा। कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 25 रुपीस हमने पे किए, बट ये 25 रुपीस हमने ऑन बिहाफ ऑफ हेमा पे किए। तो ये 25 रुपीस हमें क्या करना है, ये 25 रुपीस हमें हेमा से वापस लेना है। ये 25 रुपीस हमें हेमा से वापस लेना है। तो हेमा को रूल अप्लाई किया, डेबिट द डेटर, डेबिट द डेटर। यहां पे हेमा जो है, हेमा ये डेटर है। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to receive the money. कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड कैरेज, पेड कैरेज, तो कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल हमने कैश अकाउंट को अप्लाई किया। हेमा को रूल अप्लाई किया, डेबिट द डेटर, ये रूल हेमा को अप्लाई किया। नरेशन ऑफ दिस, एंट्री का नरेशन, बीइंग कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेमा। नरेशन जो है, एंट्री का नरेशन, बीइंग कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेमा। Narration है being carriage paid on behalf of Hema. And now the last transaction. Last transaction है purchase goods from Sunita for cash. Underline the word for cash. Purchase goods from Sunita for cash. Underline करना है for cash. तो last transaction है January 27. इसका जर्नल एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट। गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट। यहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, गुड्स आर कमिंग इन देयरफॉर डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट देयरफॉर क्रेडिट। रूल का एप्लीकेशन जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन देयरफॉर डेबिट, कैश इज गोइंग आउट देयरफॉर क्रेडिट। नरेशन ऑफ दिस, लास्ट एंट्री का नरेशन, बीइंग purchase goods, being purchase goods from Sunita for cash. Narration जो है, narration है being purchase goods from Sunita for cash. So these are the journal entries for sum number है 13। लेजर जो टॉपिक है, लेजर टॉपिक का सम नंबर है 13। नाउ इसके लेजर अकाउंट्स, नाउ द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर। कैश अकाउंट, अकाउंट नंबर 1, गुड्स अकाउंट, अकाउंट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट नंबर 3, हेमा अकाउंट नंबर 4। तो 4 अकाउंट्स आर देयर, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड हेमा अकाउंट। ये इस सम के 4 लेजर अकाउंट्स है।